Vani, Dr. Najib, and dear audience. I'm here to present two lectures on two meditation mushrooms. Before that, I would like to thank Dr. Vani for giving me the opportunity to come here and grace this important occasion. And he has done a marvelous job in training you people in mushroom cultivation and making you an entrepreneur. And this task will be more successful if you adopt the technology which has been demonstrated to you by many experts which he has called from different universities or institutes. So these are the different medicine important mushrooms. First one is your Ganoderma lucidum, which is called reishi mushroom or mushroom of immortality. इसको अमृत जैसे सोमरस बोलते थे ना वैसे ही मतलब अमर रहने का मशरूम भी बोलते हैं. So Chinese used to eat this mushroom in bulk, and they are using it in many medicines. Then we have this second one important mushroom. This is shiitake, Ladinulae roots. Then we have this Gryphula frondosa. Then Flammulina relatives, which is called winter mushroom. Then Auriflaria, which is called woodier mushroom. Then oyster mushroom is there. And then we have this Rhizophyllum commune, which is found in many forest trees. Then we have this Hericium mushroom also, this middle one, Hericium mushroom or lion's mane mushroom. So we are also cultivating it at Solar also, and one of my MSc student did his work on this mushroom. Then we have this cordyceps also, which is also found in many parts of Kashmir also, which is found at very high altitude. Then we have this turkey tail, and then is Poria, and then Agaricus bisporus. So we have so many mushrooms in nature. And in three important components of the global mushroom industry are your edible mushroom, medicinal mushrooms, and wild mushrooms. So now we'll talk about shiitake mushroom. So shiitake, it is also called Lentinoloidot. It is now the world's leading cultivated edible mushrooms with about 22% of the world's supply. So 22% of the whole production is contributed by this shiitake mushroom. और दुनिया में नंबर 1 पे मशरूम माना जाता है ना शिitake मशरूम. हमारे इंडिया में जैसे बटर मशरूम को माना जाता है, इसको पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पे माना जाता है. और उसके बाद हमारे दूसरे मशरूम्स आते हैं जैसे ढींगरी मशरूम है, ऑरिफ्लेरिया है, अगेन बटर मशरूम है, फ्लैमुलिना है. तो बाकी मशरूम्स का कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 85% तक है ना. और जो शिitake मशरूम होता है, इसका टेस्ट थोड़ा यूनिक सा होता है, अलग होता है, बहुत टेस्टी होता है और बहुत इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है. इट इज मोस्ट पॉपुलर कल्टिवेटेड मशरूम्स इन जापान. जापान में बहुत ज्यादा लगाते हैं इस मशरूम को. और ये हमारी एनर्जी बढ़ाता है, हमारी ताकत बढ़ाता है और एजिंग को मतलब हमारी जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बुढ़ापा आने लगता है तो एजिंग को भी थोड़ा इट डिमिनिशेस एजिंग. तो हर आदमी चाहता है कि मैं जवान रहूं. औरतें हमारे से आदमी से भी ज्यादा चाहती है कि मैं हमेशा जवान दिखूं. तो अगर इसको मशरूम को खाएंगे तो आप और जवान दिखेंगे, है ना. और हम इसको शिitake क्यों बोलते हैं भी पता होना चाहिए हमें. शिitake क्योंकि जो शी वर्ड है ये सबसे पहले एक ट्री का नाम है कैस्टोनॉप्सिस दिस कस्पिडेटा. इसके ऊपर सबसे पहले इसको देखा गया था शी ट्री के ऊपर, इसलिए इसको शिitake भी बोलते हैं. तो आज अगर इसकी बात करेंगे कहाँ इस मशरूम की पैदावार होती है, तो इसकी पैदावार चाइना, ताइवान, जापान, कोरिया, सिंगापुर, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. तो पूरे वर्ल्ड में इसकी कल्टीवेशन होती है शिitake मशरूम की, है ना. और जो मशरूम है लो टेम्परेचर पे लगता है, 15 से 18 या 20 डिग्री पे लगता है. तो जो टेम्परेचर हमारे बटर मशरूम के लिए चाहिए उसी तापमान पे हमारा ये शिitake मशरूम पे लगता है. और इंडिया में इसकी कल्टीवेशन मोस्टली हमारी जो सॉडस्ट होती है, जो बरादा होता है, उसके ऊपर की जाती है. और कई और इसमें जो है आपका व्हीट ब्रान और राइस ब्रान जो चोकर होती है उसको भी मिलाया जाता है, जो आपने सुबह देखा भी था प्रैक्टिकल में. तो अगर हम सभी मशरूम का कंट्रीब्यूशन देखते हैं वर्ल्ड में तो आप देख सकते हैं शिitake का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है. 22% पैदावार हमारी शिitake मशरूम की है. उसके बाद हमारी ढींगरी मशरूम की है, फिर वुडियर मशरूम की है जो ऑरिफ्लेरिया मशरूम है, फ्लैमुलिना की है जो हम अभी कवर करेंगे, और बटन मशरूम है. और जो पैडी स्टॉक मशरूम इसकी कंट्रीब्यूशन काफी कम है, 5% है, और 10% कंट्रीब्यूशन हमारे बाकी मशरूम्स का रहता है.
तो मोस्टली जो 5-6 किस्म के मशरूम है ये पूरे वर्ल्ड के मशरूम इंडस्ट्री को टॉप करते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो टोटल मशरूम प्रोडक्शन है हमारी काफी कम है, 3.2 मिलियन टन है। और हमारा कंट्रीब्यूशन अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं तो हार्डली 1% है। वी हार्डली कंट्रीब्यूट अबाउट 1% टू द ग्लोबल मशरूम प्रोडक्शन, बट डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग। तो हमारी पैदावार भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। खासकर जो कोरोना के बाद लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ा, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी प्रदान करता है आपको, प्रोटीन रिच फूड है। तो इसके बाद कोरोना के बाद इसकी डिमांड काफी बढ़ रही है और हमारे एरिया और प्रोडक्शन डे बाय डे इसके अंदर बढ़ रही है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे 73% प्रोडक्शन जो हमारी बटर मशरूम की है। इसके बाद 16% कंट्रीब्यूशन हमारा ऑयस्टर मशरूम का है। 7% जो है हमारा बेटिसो मशरूम है। मिल्की मशरूम 3% है। और जो बाकी स्पेशलिटी मशरूम है उनका कंट्रीब्यूशन हमारा 1% के करीब है। तो अगर हम इसकी कल्टीवेशन की बात करते हैं शिटाके मशरूम की, तो इसके दो मेथड से लगाया जाता है। एक लॉग मेथड है और दूसरा आपका सिंथेटिक लॉग, और जिसको जो आपने सुबह किया सॉडस्ट मेथड, बुरादे वाली विधि है, उसके द्वारा इसको लगाया जाता है। जो बुरादा विधि या सिंथेटिक लॉग या सॉडस्ट मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इसको इंडिया के बाकी कंट्रीज में ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये इजी है, इसमें मशरूम लगाना आसान है और इसमें पैदावार भी हमारी जल्दी आती है, तो इसलिए इसको ज्यादा फॉलो करते हैं। तो इसके लिए क्या फार्मूला है हमारा, जैसे हमने सुबह बताया आपको, 80% आपने बुरादा लेना है। बुरादा उन पेड़ों का लेना है जो चौड़ी पत्ती वाले हैं। जैसे आपकी चीड़ देवदार है, इनका बुरादा नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई इनहिबिटर्स होते हैं या आपके ये रेजिन्स होते हैं, तो उसके चक्कर उसके कारण जो इसमें मशरूम का माइसीलियम नहीं फैलता है। तो इसलिए हम इसमें ब्रॉड स्पीशीज जिसके चौड़े पत्ते होते हैं, जैसे पॉपुलर है आपका, विलो है, तुंडा सीलेटा है, मैंगो है, इन ट्रीज का हम बुरादा इसमें लेते हैं। फिर 19% इसमें वीट ब्रांड डालते हैं, जो चोकर होती है, जो जब हम आटा छानते हैं जो बच जाता है उसको वीट ब्रांड बोलते हैं। तो 19% वो लेते हैं। 1% इसमें कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, 1% कैल्शियम सल्फेट लेते हैं। और जो वाटर कंटेंट है हमारा 60 से 65% के करीब होना चाहिए इसमें। और जो पीएच है, पीएच का बहुत रोल रहता है मशरूम में, तो इसकी पीएच जो है 5.5 to 6 रहनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब हम इसको मिक्सचर बना लेते हैं, बुरादे को भिगा लेते हैं, तो फिर हम इनको बैग्स में भरते हैं, 1.5 से 2 किलो हम भरते हैं बैग्स में, और इसको स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव में 22 पाउंड प्रेशर पे 2 घंटे के लिए। और उसके बाद हम इसमें जब ठंडा हो जाए तो नेक्स्ट डे हम इसमें स्पॉनिंग करते हैं 2 to 5% की हिसाब से। फिर आता है कि इसमें क्या स्टेजेस आती है। जब इसमें आपने स्पॉनिंग करती, फिर इसमें अलग अलग स्टेजेस आती है, जैसे माइसीलियल रनिंग स्टेज होता है। सबसे पहले इसमें 2 से 4 हफ्ते के बाद माइसीलियल कोट फॉर्मेशन होता है, मैं फोटो में भी दिखाऊंगा। इसमें पहले माइसीलियल कोट फॉर्मेशन होती है, जो बैग आपका काफी हार्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद माइसीलियल बम्प फॉर्मेशन होती है, इसमें फफोड़े से बनते हैं। फिर उसमें पिगमेंटेशन स्टेज आती है, और फिर क्वार्ट हार्डनिंग स्टेज आती है। तो ये है, जैसे आप देख लेंगे, पहले आपने बैग्स को लिया और उनको इनॉकुलेट किया, फिर उसके बाद आपने बैग्स को किसी गर्म कमरे में 25 डिग्री तापमान पर रखिए। फिर आप देख सकते हैं जो माइसीलियम है आपका इसमें फैलना स्टार्ट हो जाएगा आपका बैग में। जो बुरादा है, बुरादे में भी आपका माइसीलियम फैलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर 25-30 दिनों के बाद जब पूरा फैल जाएगा, आपका हार्ड हो जाएगा कोट, फिर आपने बैग्स को हटा देना है, और फिर इसमें आपके बम्प्स ऐसे थोड़े रेज स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इस तरह की स्टेज दिखती है। फिर आपने क्या करना है, इसमें कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो आइस कोल्ड वाटर, जैसे बर्फ वाला आपने पानी ले लिया बड़े से बर्तन में, पूरे बैग्स को आपने खोल के इसमें डिप करना है। शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तो उसके बाद ही इसमें फिर आपकी मशरूम्स निकलना स्टार्ट होते हैं। तो उसके मशरूम्स काफी अट्रैक्टिव होता है, ब्राउन कलर के आते हैं, कई ब्लैक भी होते हैं। तो हर मशरूम जो है 40-50 ग्राम का एक मशरूम निकल जाता है कम से कम। तो ये काफी खाने में काफी टेस्टी होते हैं, और पैदावार भी इसमें अच्छी आती है। कई स्टेज में तो जैसा अगर आपने 100 किलो बुरादा लिया, 100 किलो में से 100 किलो भी आपकी पैदावार आ सकती है, पर जनरली 40 से 50% तक आती है ना। अगर आपने 100 किलो बुरादा लिया तो आपकी 40 से 50% तक आप इसमें पैदावार दे सकते हैं। और ये मशरूम जो इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल के अगर आप दिल्ली वगैरह में बेचते हैं, सब्जी मंडी वगैरह में, आजादपुर मंडी में, तो इसको 800-900 रुपए केजी तक बिक जाता है आराम से। इस तरह ये हमने ड्रॉप लगाई थी, 16 इंच का फोटो है। तो इस तरह दिखते हैं आपके बैग ना। तो जो बैग का साइज है इसमें छोटा रहता है, क्योंकि ऑटोक्लेव का साइज थोड़ा छोटा रहता है। अगर बहुत बड़े बैग बनाएंगे तो एक तो इसमें माइसीलियम नहीं फैलेगा, और आपको जो है ऑटोक्लेव करने में भी दिक्कत आती है।
सबसे बड़ी इसमें समस्या ये रहती है कि आपको मटेरियल को ऑटोक्लेव करना पड़ता है, तो आपको जो ऑटोक्लेव लेना पड़ेगा, लैमिनार एयरफ्लो चाहे वो ना हो, लैमिनार ऑटोक्लेव आपको लेना पड़ेगा इसमें। उसकी कीमत अगर आप छोटा लेंगे तो 1.5-2 लाख से स्टार्ट हो जाती है, और अगर बड़ा लेंगे जिसमें आपके 50-60 बैग इकट्ठे आ जाएंगे तो 3-4 लाख तक का आपको आता है। लेकिन क्या आता है कि आप मुझे कश्मीर का तो पता नहीं, हमारे हिमाचल में उसमें सब्सिडी काफ़ी है, 70 से 80% तक गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है, अनुदान देती है। अगर आप मशरूम यूनिट लगाते हैं, स्पॉन यूनिट लगाते हैं, खाद का यूनिट लगाते हैं, तो इसमें सरकार काफ़ी अनुदान देती है आपको, है ना। तो आप भी अपनी गवर्नमेंट के प्लान से आप पता कर सकते हैं, जो भी आपके डिपार्टमेंट है कंसर्न, कि इसमें आपकी कितनी सब्सिडी रहती है। तो इस तरह से क्रॉप आती रहती है ना। और फिर जब आप इसमें एक बार क्रॉप ले लेते हैं, उसके 5-7 दिन बाद फिर आपने इसे दोबारा शॉक ट्रीटमेंट दे दिया, तभी आपकी नेक्स्ट फ्लश आता है, है ना। तो इसमें आप 2 से 3 फ्लश आप इसमें आराम से ले सकते हैं। ये हमारे वाइस चांसलर साहब, इनको बड़ा इंटरेस्ट था, इन्होंने जब से लगाया कि आप शिटाके लगाओ, है ना। तो ये एक बार आए थे हमारे यूनिट देखने, तो इस तरह ये मशरूम दिखता है ब्राउन कलर का, है ना। सेकंड मेथड है हमारा लॉन्ग मेथड ऑफ कल्टीवेशन, मतलब जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं उसके ऊपर भी हम कई बार मशरूम को लगाते हैं, लेकिन ये मेथड इतना पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर इसलिए नहीं है तो लकड़ी की फैलिंग पे बैन रहता है, आप लकड़ी ऐसे काट नहीं सकते हैं, आपको सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है ना, हर पेड़ को नहीं काट सकते, तो इसलिए थोड़ा ये मुश्किल इसलिए कि आपको लकड़ी अवेलेबल भी होनी चाहिए, है ना। तो खास कर ये जो हमने विलो का ट्रीज ली है, विलो काटे है, तो इस विलो के ऊपर बहुत अच्छा चलता है ये जो शिराके मशरूम है। जिसमें क्या करते हैं, पहले लकड़ी के लट्ठे लेंगे, फिर उसमें हम छेद करते हैं, ड्रिलिंग मशीन से इसमें छेद करेंगे, और इसमें किसी भी साइज और एज का आप लकड़ी का लॉग ले सकते हैं, जिसका डायमीटर जो है 9 से 18 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 15 से 20 साल पुरानी अगर ट्री है तो ज्यादा अच्छा रहता है। और जो कटिंग है इसमें ट्रीज की सर्दियों में काटते हैं जनरली, हम इसको दिसंबर से जनवरी के बीच में, और जब उस टाइम क्योंकि इसमें जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं ट्रीज में सबसे ज्यादा रहते हैं, और मॉइस्चर कंटेंट जो आपकी लकड़ी में 44 से 45% होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फेलिंग। फिर उसके बाद लकड़ी काटने के बाद इसको आप 25 से 45 दिनों के लिए ऐसे ही रखेंगे, ताकि जो मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा आपका कम हो जाए। तो इस तरह आपने इसमें इतनी इतनी दूरी पे आपने इसको छेद कर देना है मशीन में, है ना, मशीन ड्रिलिंग मशीन से। फिर आपने इसका स्पॉन बनाना, जो इसका स्पॉन होता है वो थोड़ा अलग होता है, इसमें गेहूं के ऊपर हम इसको नहीं बनाते इसका स्पॉन, इसका हम या तो बुरादे के ऊपर बनाते हैं, या जो लकड़ी के प्लग होते हैं छोटे छोटे, जिस साइज का आपका छेद है उसी साइज के लकड़ी के पीस काटते हैं मशीनों से, और उसके ऊपर माइसीलियम स्पॉन बनेगा, माइसीलियम को फैलाएंगे, और फिर उन प्लग्स को आप उन छेदों में डालते हैं। तो ये इस तरह इसका मेथड थोड़ा अलग होता है स्पॉन का। फिर उसके बाद जो है लकड़ी के लॉग्स में हम इस स्पॉन को डाल देंगे। अब ये देख सकते हैं बुलेट स्पॉन है जो हमने डाला है इसमें, इसी शेप का, ये तो कहीं बाहर बेल्जियम से मंगाया है। तो इस तरह लकड़ी के जो पीसेस होते हैं ना उसके ऊपर स्पॉन जब फैल जाएगा, उन स्पॉन को आप इसमें ऐसे डाल सकते हैं इसमें प्लग। फिर उसके बाद इन लकड़ी के छेदों पर जो है, जो छेद होते हैं इसमें आपने स्पॉन डाला है, उनको प्लग कर देंगे। जो आपका वैक्स होता है, वैक्स बाजार में मिल जाता है, उसको आप पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद बैटिंग करने के बाद आप इसको प्लग कर देंगे, ताकि इसमें कोई और इन्फेक्शन ना आ सके। फिर अगर आपने इस मेथड से आपने ये लगाई है, स्टाके लगाई है, तो फिर आपने इसको कवर एक जगह, जैसे छायादार कोई जगह है, आपने उसको कवर कर देना, गनी बैग बोरियों से ढक दिया, इसमें प्लास्टिक शीट से ढक दिया, और फिर इसी स्टेज में आपने इसको 8 से 12 महीने लगेंगे इसको स्पॉन फैलने में, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। जो आपका बुरादे के ऊपर है उसमें तो आपके 45 से 50 दिन के बाद क्रॉप आना स्टार्ट हो जाती है, इसमें टाइम बहुत लगता है, 8 से 12 महीने के बाद इसमें क्रॉप आना आपकी स्टार्ट होती है। और फिर जब आपने इसमें, जब आपको लग गया कि मेरा बीज इसमें फैल गया है लकड़ी में, फिर आपने इसमें भी ठंडे पानी की स्प्रे देनी है, और क्रॉपिंग जहाँ आपने क्रॉप लेनी है वहाँ नमी खूब होनी चाहिए। नमी तो हर मशरूम में चाहिए आपको, 80-85% आपको नमी चाहिए इसमें, और टेम्परेचर आपका 15 से 20 डिग्री चाहिए। लेकिन इसमें जो है, और बाद में जो लट्ठे होते हैं इनको आप ऐसे स्लांटिंग ऐसे तिरछे रख देंगे, जैसे हमने शेड नेट हाउस बनाया है, उसमें आप इनको तिरछे रख दिए, इसमें पानी की हल्की की स्प्रे देते रहे, फिर 8-10 महीने के बाद इस तरह इसमें फसल आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें जो फ्रूट बॉडीज आती हैं काफी स्टाउट होती हैं और सॉलिड रहती है, अच्छी क्वालिटी का मशरूम आता है। जो रॉ मेथड आता है, जो दूसरा मेथड है, उसमें मशरूम इतनी अच्छी नहीं होती, इसमें आपकी फ्रूट बॉडीज इसकी काफी अच्छी रहती है, क्वालिटी इसकी अच्छी आती रहती है, और इन लॉग से फिर 4 से 5 साल तक आपकी क्रॉप आती रहती है।
इसमें नो डाउट आपकी क्रॉप आपके 8-10 महीने बाद आती है, लेकिन जो इसमें फसल है आपकी 4-5 साल तक फिर आती रहेगी, आपको बार बार इसमें स्पॉनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये लॉन्ग मेथड है हमारा। बाकी हर मशरूम की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो इस मशरूम में खासकर एक लैंटिनिन नाम का कंपाउंड होता है, क्योंकि इसका नाम लैंटिनोलोइडोड्स है, तो इसमें एक लैंटिनिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जिसके कारण इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसके अलावा ये आपकी वास्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है एंड इम्यून एंसर भी है। तो लास्ट में ये है कि दिन पर दिन जो मशरूम की डिमांड हमारी बढ़ रही है, और मशरूम इंडस्ट्री एक राइजिंग इंडस्ट्री है, डे बाई डे इसकी प्रोडक्शन डे बाई डे हमारी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है इसकी। तो आप इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, शायद आपने डॉक्टर साहब ने कोई लेक्चर भी रखा है, एडिशन भी कर सकते हैं इसकी। बिस्किट्स में आजकल तो इसके बहुत प्रोडक्ट आ रहे हैं, बिस्किट्स में यूज हो रहा है, ब्रेड में यूज हो रहा है, पाउडर बन रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी में जो फूड साइंस डिपार्टमेंट है, इसकी काफी प्रोडक्ट बनाता है ना, तो हर चीज में आप इसको ऐड कर सकते हैं। इवन जो मशरूम जो पापड़ बनते हैं, लेदर बनता है इसका, उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं, और वैल्यू एडिशन से आप इसकी अच्छी मतलब जो है पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू। तो ये थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस लेक्चर। मुझे लगता है हर एक को समझ आ गया, तो आप लोगों ने इसका ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुके वहाँ, तो इसलिए इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आई थिंक डॉक्टर साहब शुड कंटिन्यू हिज सेकंड लेक्चर, ठीक है ना? तो उसके बाद फिर ओके। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ, कुछ आपके डाउट है आप हाँ, पूछ सकते हैं। बोलो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। अभी आपने कोई बोलो। लगाता है शिकागो मशरूम, कोई लगाता है? हाँ, ओके ओके, यू कैन लीव इफ यू वांट टू लीव, यू कैन लीव। जैसे आपने बोला कि इंडिया में 73% इज द कंट्रीब्यूशन फॉर बटन मशरूम, Yes, yes, yes. 16% फॉर ऑयस्टर, पैडी 7% एंड मिल्की मशरूम 3%, Yeah. there are 1% अदर मशरूम। Yeah. व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दैट? मतलब जो, क्योंकि अगर हम लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर मशरूम की बात हमारे इंडिया में आती है तो हमें पहली जो पिक्चर नजर आती है वो बटन मशरूम। बटन मशरूम, एग्जैक्टली। हाँ। तो व्हाट इज द रीजन कि मतलब ये सस्ता है, बाकी मशरूम से जल्दी इसकी पैदावार होती है, व्हाट इज द मेन रीजन? रीजन एक तो ये है कि जो बाकी मशरूम्स हैं हमारे, पहले तो इसमें अवेयरनेस नहीं थी, लैक ऑफ अवेयरनेस मेन रीजन है, क्योंकि पहले ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कम होते थे, क्योंकि आदमी सीखेगा तभी कोई एडवर्टाइजमेंट होती है। अब बाजार में कोई प्रोडक्ट आता है ना, ये आपका ये घी है, ये आपका ये है, ये आपका मेकअप का सामान है, तो तभी पता चलता है ना हमें। तो इसकी बारे में एडवर्टाइजमेंट, मुझे लगता है लैक ऑफ अवेयरनेस इज द मेन रीजन दैट इट कुड नॉट बी पॉपुलराइज्ड। फिर सेकंड होता है आपकी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसे हमारा डायरेक्टेड भी बहुत पुराना नहीं है, हमारा जो सोलर का है 84-85 में शायद बना था, तो अब तो 25-30 साल हो गए। तो डे बाय डे फिर जब उन्होंने इस पे काम स्टार्ट करना किया, नाउ डे बाय डे पीपल आर गेटिंग मोर एक्वाइंटेड विद दिस मशरूम। नॉर्थ ईस्ट में जैसे यहाँ मणिपुर में ये मशरूम का, ये वाला मशरूम मणिपुर में जंगलों में काफी मिलता है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी था यहाँ सोलर में चला हुआ था, उसमें उन्होंने 50-60 किस्म की इसकी वैरायटीज कलेक्ट की हैं और इसका जर्मप्लाज्म वहाँ कंजर्व किया है। तो हमने भी, मेरे भी एक स्टूडेंट ने अभी काम किया, पीएचडी किया, उसमें 15 वैरायटीज इसमें टेस्ट की, और उसमें 2-3 वैरायटीज हमें बहुत अच्छी मिली, हाई यील्डिंग है। तो अब लोगों को पता लग रहा है, तो अब हमारे पास काफी लोग आते हैं, और जब से लोगों ने सुना है कि इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं, तो कई बार तो लोग, जैसे किसी को कैंसर है तो कैंसर पेशेंट होता है, अब जो बीमार आदमी है उसको कुछ भी बोलेंगे आप वहीं दौड़ेगा। तो कई बार हमारे पास में आते हैं, सर हमें कैंसर है, आप हमें ये वाला मशरूम दीजिए। फिर उनको समझाना पड़ता है कि इट इज प्रिवेंटिंग नॉट ए क्यूरेटिव है ना। अगर आप इसको पहले से अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आपको कैंसर होने के कम चांसेस है, बजाय अगर आपको हो जाता है तो देन इट इज डिफिकल्ट टू क्योर, है ना, क्योंकि कैंसर तो ऐसी बीमारी आप ऐसे नहीं क्योर कर सकते हैं ना। तो इट हैज मैनी such kind of component that it can prevent many important diseases. और कोई आपकी क्वेश्चन हो? सेकंड मशरूम है हमारा फ्लैमुलिना वेल्टिप्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मशरूम है, बट हमारे यहाँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना वगैरह में ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये 6th इंपॉर्टेंट मशरूम है वर्ल्ड में। और जो जापान और चाइना और जापान में भी ये बहुत फेमस है वाला मशरूम, और जो देखने में ये काफी लंबा होता है और व्हाइट कलर का होता है जनरली,
और ज़्यादातर इसको सूप, स्टीर फ्राई, सैलेड और अदर डिशेस में यूज करते हैं और इसका फ्लेवर काफी अच्छा होता है ना। तो इस मशरूम को इनोकी टेक भी बोलते हैं, गोल्डन एरल भी बोलते हैं, वेलवेट सैम भी बोलते हैं और वेलवेट फुट मशरूम भी बोलते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह निकलता है, जो इसके जो स्टाइप होता है, डंडी होती है, काफी पतली होती है और ये काफी ऊंचाई जाती है, 1-1 फुट तक भी जाता है हाइट में, 6 इंच, 8 इंच, 12 इंच। ये मेरे एक स्टूडेंट ने इसमें पीएचडी भी किया है इसी मशरूम पे, तो ये उसी के ट्रायल पे फुटे हैं। तो इस मशरूम को सबसे पहले चाइना में लगाया गया था और आजकल जो है ये चाइना, साइबेरिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, जापान, इन कंट्रीज में लगाया जा रहा है। तो अगर इसकी हेल्थ बेनिफिट की बात करते हैं तो यह नाइसिन जो हमारा एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है उसमें काफी अच्छा मात्रा में इसमें पाया जाता है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और इसमें अच्छे तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और कैंसर फाइटिंग एक्टिविटीज भी इसकी पाई गई है ना, और मेमोरी एनहांसर भी माना गया है इस मशरूम को। तो काफी ज्यादा इसके बेनिफिट्स पाए गए हैं। तो कई बार जब इसके हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये इस तरह भी आ जाता है, मतलब ऐसे बंचेस में आता है ना। तो ये बंच में तब आएगा अगर आप इसको बॉटल, कई बार इसको ना पीपी पॉलीप्रोपाइलीन या तो बैग्स में लगाते हैं, कई बार इसको बॉटल में लगाते हैं। चाइना जापान में इसको बड़ी बड़ी बॉटल्स में लगाया जाता है। तो जब इसको बॉटल में लगाते हैं तो जब इसकी ग्रोथ होती है तो इसको साइड से इसको ना प्लास्टिक के जो शीट्स आती है ना, OHP शीट्स बोलते हैं इसको, प्लास्टिक की तरह हार्ड शीट्स होती है, उसका एक कॉर्नर बना के उसको रोल करके इसके साइड में लगा देते हैं, बॉटल के साइड में। तो जब उसको लगाते हैं तो फिर इसकी जो ग्रोथ होती है स्ट्रेट होती है बिल्कुल। उससे ये फायदा होता है कि जब इसकी कटिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ मैकेनाइज्ड लेबर तो कम होती है कंट्रीज में, इसको मशीन से काटने में आसानी रहती है, तो पूरे का पूरा बंच निकलता है और इसको हम एज सच इसको पैक करके, जैसे हम ग्लैडुलस में और फ्लावर्स को बेचते हैं उसी तरह इसको फिर बेचा जाता है। तो जनरली 5 स्टार होटल्स वगैरह में चलता है। इंडिया में भी जो थोड़ा बहुत होगा कोई लगाता होगा तो होटल्स में ही जाता है, बाकी कॉमन आदमी की रीच से बाहर है वाला मशरूम है ना। तो इस तरह की डिशेज इससे बन सकती हैं, जैसे स्टीर फ्राइज, राइस बाउल, इनोकी सूप, फ्राइड इनोकी, देन सैलेड्स, इस तरह की डिशेज में इसका काफी यूज होता है। और इसके हेल्थ प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं आजकल, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं, जैसे इसकी कैप्सूल्स भी आते हैं, इसका पाउडर भी आ रहा है, माइकोमेटिका आ रहा है, ड्राई पाउडर आ रहा है, सुपर प्रोटीन्स आ रहा है, इनोकी किट आ रहा है। तो हर मशरूम का, इसी मशरूम का नहीं, जितने भी हमारे मेडिसिनल मशरूम्स हैं आजकल बहुत इंडिया में बहुत कंपनीज आ रही हैं जो इसके प्रोडक्ट बना रही हैं। एक चंडीगढ़ के पास मैं एक को जानता हूँ, गैनोडर्मा जो मशरूम है उसके पाउडर के वो मतलब अप्रूवल लेना पड़ता है ना, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा है इंडिया में, क्योंकि कोई भी आप हेल्थ बेनिफिट्स के प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं बेच पाते हैं, तो उनसे आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है, उनसे आपको मंजूरी लेनी पड़ती है, तभी आप इसके कैप्सूल्स वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो बहुत सी कंपनीज है इसमें डील कर रही है इंडिया में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इसके प्रोडक्ट्स आजकल बेच रही है बाजार में। स्मॉल प्रिपरेशन आपको डॉक्टर नजीर ने बताई दिया है ना। तो इसको भी आप पॉपुलर के बुरादे पे, प्लम, एप्पल, डेट्स, इन सभी के बुरादे के आप इसको आराम से लगा सकते हैं। और जैसा मैंने शिटाके के लिए आपको सुबह बताया, इसको भी हम पॉलीप्रोपाइलीन की बैग्स में लगा सकते हैं और इसके अलावा आप इसको
बॉटल्स में भी लगा सकते हैं। इसमें मेन ये है कि जो टेम्परेचर है इसका फ्रूटिंग के टाइम से टेम्परेचर काफी कम चाहिए। जैसे कश्मीर में होता है 10-12 डिग्री का टेम्परेचर है, तो आपकी क्रॉप इसमें अच्छी आती है। लो टेम्परेचर वाला मशरूम है। और जब इसकी फ्रूट बॉडीज जो है 13 से 14 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है, तो इसके साइड में आप पेपर रैप कर सकते हैं एंड फ्रूट बॉडीज आर पुल्ड अप फ्रॉम द बॉटल लगाए। और आपने इसको बॉटल में लगाया तो आप पूरी बंच को निकालेंगे और आप इसको पेपर में रोल करके इसको बेच सकते हैं। और 50 से 60 दिन में जनरली इसकी क्रॉप आ जाती है, आपकी तैयार हो जाती है ना। 50 से 60 दिन इसमें क्रॉप आने में लगते हैं। और जैसे अगर आपको 2 केजी का बैग है तो 2 केजी के बैग से आपको 300 से 400 ग्राम तक मशरूम आपकी आ जाएगी। तो जनरली अगर आपका 2 केजी का बैग है तो आपको 300 से 400 ग्राम आपको इसमें मशरूम आ सकते हैं। और 2 फ्लशेस हम इसमें लेते हैं। और पहले भी मैंने बताया आपको नमी और टेम्परेचर का बहुत रोल रहता है मशरूम लगाने में। तो इसके लिए नमी जो है आपको 13 से 80 से 90% तक नमी चाहिए और 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको उसमें तापमान चाहिए होता है। तो ये मेथड है इसका। आप पहले वेटिंग करेंगे, जैसे मैंने सुबह बताया आपको। वेटिंग के बाद इसमें मिक्सिंग करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट की। फिर इनको ऐसे ही बैग्स में भरेंगे। उसके बाद आप इसको स्टेबलाइजेशन करेंगे ऑटोक्लेव में। फिर आप इसमें इनॉकुलेशन करेंगे लेमिनार एयर फ्लो कंडीशंस में। और फिर आप इसको बैग्स को 25 डिग्री तापमान पे वीक फैंडे के लिए रख देंगे, स्पॉन रनिंग के लिए रख देंगे। उसके बाद ये फिर इसमें आपका जो मशरूम्स निकलना स्टार्ट होती है। ये हमारे ट्रायल्स है ना, तो अलग-अलग वैरायटीज हमने इवैल्यूएट किया है इसमें। तो देख सकते हैं कहीं की वैरायटी की फ्रूट बॉडी ज्यादा अच्छी है, कहीं में पैदावार ज्यादा आ रही है। अब जैसे ये इसमें सॉडस्ट और वीट वर्म पे हमने लगाई है, तो इसमें हमारे 35% तक हमारे को इसमें पैदावार आ रही है। बायोलॉजिकल एफिशिएंसी इसमें 35% तक है। और ये हमने वीट स्ट्रॉ, वीट बरान और कॉर्न कॉप्स के ऊपर लगाई है। इसमें इस तरह की क्रॉप हमें मिली है। ये सॉडस्ट और कॉर्न कॉप्स के ऊपर लगाई है। ये वीट स्ट्रॉ के ऊपर हमारे इसमें काफी अच्छी पैदावार मिली है। 65-68% तक इसमें पैदावार आई। तो देख सकते हैं आप पूरे बैग बिल्कुल भरे हुए हैं और इसमें अच्छी आपको पैदावार मिल रही है। बाकी इसमें भी छोटी मोटी बीमारियां तो हर इसमें आती है, तो इसमें भी आ जाते हैं। कोई मोल्ड आते हैं, कोई बैक्टीरियल रॉट आती है, तो उसके लिए आप छोटी मोटी कोई इसमें स्प्रे दे सकते हैं ना। पर स्प्रे हम इसमें मशरूम में कम से कम देते हैं, क्योंकि ये खुद एक फंगस है। अगर हम इसमें स्प्रे देते हैं फंजीसाइड की, तो इसमें आपके फंगस भी मर सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सी इसमें स्प्रे देनी है। तो थोड़ी सॉफ्ट रॉट, नेमाटोड, माइट इन चीजों का अटैक रहता है, तो हम इसमें थोड़ी बहुत कोई इसमें स्प्रे दे सकते हैं। जैसे ये भाई साहब ने पूछा था कि इन चीजों की प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही थी। फिलेमिलिना में भी देखो सेकंडरी उन्होंने ये दिया है कि इसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। इसका रीजन ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं, लोगों को पता नहीं है इसका, कंज्यूमर्स को इसके बारे में पता नहीं है। और कई बार हमारे पास टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स ज़रा पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन दिन प्रतिदिन जो है जैसे जैसे लोगों को इसकी वैल्यू को पता लग रहा है, वैसे वैसे इसकी प्रोडक्शन जो है हमारी बढ़ रही है। तो ये था इस मशरूम के बारे में। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कभी हमारे को संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई क्वेश्चन हो? Thank you, sir, for both the informative lectures. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you.